नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। NGP स्टेशन में राजनीतिक संघर्ष से मचा हड़कंप, 6 लोग घायल। INTTUC के कार्यालय में तोड़फोड़। पूजा से पहले सिलीगुड़ी में NGP स्टेशन में शुक्रवार को राजनीतिक संघर्ष को लेकर भारी तनाव देखा गया। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार NGP स्टेशन में एक नए टेंडर को लेकर काम शुरू हुआ है। इसे लेकर ही विवाद का सूत्रपात हुआ। रेलवे के एक नंबर NFTU के CTC दायित्व में रहे कर्मचारी काम कर रहे थे। बताया जाता है कि कुछ लोग अचानक लाठी, लोहे और रॉड से वहां पहुंचे और इन कर्मचारियों पर हमला शुरू कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत नियंत्रित किया। भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के महासचिव राजू शाह ने बताया कि इससे पहले भी इन कर्मचारियों को विभिन्न तरीके से परेशान किया गया। इन लोगों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया। दूसरी ओर घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा INTTUC के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। बाद में NGP पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया। अस्थायी कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज तृणमूल कांग्रेस द्वारा हमला किया गया। इन कर्मचारियों में कुछ पुराने कर्मचारी भी थे। हालांकि INTTUC नेता प्रसन्नजीत रॉय तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। घटना के बाद से स्टेशन परिसर में रैफ तैनात किया गया है। ওয়ার্কিং এর স্টাফকে ওরা ভাগাইছে, ওরা ভাগে গেছে। আমরা এখানে আমাদের অফিসের বাইরে অফিসের বাইরে আমরা দাঁড়াই 60-70 জন থেকে বেশি লোক হয়ে আমার উপর কমসে কম 1-40 জন হামলা করছে, ডান্টা নিয়ে কমসে কম 10-12 ডান্টা। দেখুন এখানে কী ধরনের ঘটনা ঘটে গেছে বা ঘটেছে সেটা বিস্তারিতভাবে আমাদের কাছে কোনো খবর ছিল না। আপনাদের মাধ্যম থেকে আমি জানতে পারি যে এখানে একটা বিরাট গণ্ডগোল হয়েছে এবং আমাদের যেখানে INTTUC যে অফিসটা আছে সেইটা এখানকার কিছু লোকাল গুন্ডা, বিজেপির ঝান্ডাধারী গুন্ডা যারা, তারা এসে ভাঙচুর করেছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গ একটা শান্তিপ্রিয় রাজ্য, সেই রাজ্যে বিজেপির আশ্রিত গুন্ডারা এখানে এসে যে ভাঙচুর করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি এবং আমরা পুলিশকে বলেছি অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। যত বড় ঘটনা ঘটুক না কেন, এইটা আমাদের মন্দির। একটা পার্টি অফিস ভাঙচুর করা মানে সেটাকে কোনো সময় ধিক্কার জানানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকে না। আমরা সেই ধিক্কারও জানাচ্ছি তাদের, অবিলম্বে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় সেই ব্যবস্থা পুলিশকে নিতে পারে। আমাদের NGP স্টেশনে যে NFTUর যে আমাদের ইউনিয়ন আছে, সেই ইউনিয়নের CTCর দায়িত্বে যে আছে তাদের সুপারভাইজার যে ছিল, তাদের কর্মীদের নিয়ে আজকে রেল স্টেশনে কাজ করছিল 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। সেখানে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের দ্বারা কিছু তারা অ্যাটাক করে, কোনো মতেই যেন তারা কাজ করতে না পারে। বিগত দিনেও অনেক ভয়টাই দেখিয়েছে, কিন্তু বিগত কিছুদিন যাবত দেখা যাচ্ছে তাদেরকে নানা রকম মেন্টাল টর্চার এবং শারীরিক নির্যাতন। আজকে তো যেভাবে মেরেছে, মানে কয়েকজন ইনজিওর্ড হয়ে গেছে, তার মধ্যে একজন যে সুপারভাইজার, সে তার মাথা ফেটে গেছে, কোমরে চোট লেগেছে। তাকে এখানে শিলিগুড়ি হসপিটালে নিয়ে আসার পরে CT স্ক্যান, এক্সরে সব করা হয়েছে, খুব ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করানো হয়েছে। এখন দেখা যাক কী হয়েছে পরিস্থিতি, ডাক্তাররা দেখছে, অবজারভেশনে আছে। আর আমরা এ নিয়ে আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করব, তারপরে আগামীতে কিছু কর্মসূচি নিচ্ছে। এটা তৃণমূলের দুষ্কৃতী যারা ওখানে কাজ করছে, ইউনিয়নে যারা আছে TMC, আর আমাদের ইউনিয়নে যেহেতু এরা বিজেপি করছে, সেই জন্য এরা কোনো মতেই চাচ্ছে না যে এরা আমাদের সাথে থাকুক। এদেরকে নানা রকমভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে যে এরা আবার তৃণমূলে চলে যাক বা তৃণমূলে যেন কাজ করে, সেই জন্য বিশেষ করে এদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। কেন একটা কাটমানির বিষয় আছে ওখানে, আমরা জানি, প্রতিদিন আগে দেখে শুনেছি যে বেতন এরা পায় সে তাদের থেকে 150 থেকে 200 টাকা কাটমানি সেই ইউনিয়নকে দিতে লাগে। কিন্তু এরা এখানে আসার পরে সেই কাটমানিটা বন্ধ হয়ে গেছে, সেই জন্য যে করে হোক এই কাজটা বন্ধ করার ওরা চিন্তা ভাবনা করছে। ঘটনা কি, আমি আমার সিগনেচার সাহানি, ও আমার কম্পিউটার না, বুঝলেন না, এইখানে বসে আমরা বিল করছি। এমন অবস্থায় ওইখান থেকে বাইরের থেকে প্রায় 90-100 ছেলে আসে। তো ও দেখছে
ভিড় দেখেও গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাস ও গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এসে ওইদিকে চলে গেল। ওইদিকে যাওয়ার পরে ব্যাক করে এই সানি এই বলে ওরা র্যান্ডাম পিটাতে আরম্ভ করে। এটা কারা ছিল কোনো কিছু? এটা ওদের হাতে ঝান্ডা, দেখলাম যে ঝান্ডাটা হচ্ছে টিএমসির ঝান্ডা। না, এটা এসে তো মারামারি করে। সিএমআই তো কিছু ডিপার্টমেন্টের সাথে সেরকম কোনো আমার কাছে নলেজে নেই। কারণ কি হঠাৎ করে কারণ হচ্ছে কি, গত রাত্রিরে একটা ওয়াটারিংয়ের টেন্ডার ছিল, সেটা কালকের থেকে ওপেনিং হয় রাত্রি 12টার থেকে। তো এবার সকালবেলা আমি শুনলাম নাকি যে এটা দুটো পার্টি আছে, একটা হচ্ছে বিজেপি আছে, একটা টিএমসি আছে। প্রথমে শুনছিলাম নাকি টিএমসির যে লিডার আছে উনি ওটা করবেন। তারপরে বাই শুনলাম যে এটা বিজেপির যিনি লিডার আছেন তিনি এটাকে কন্ট্যাক্ট চালান। এবার এমত অবস্থায় এই কাজটা শুরু হয়েছে। এখন যারা আগের ছেলেরা ছিল তাদেরকে নেয়নি না নিয়েছে সেটা ব্যাপারে আমি ওয়াকিবল নয়, কেন আমি ইন্টারেস্টেড না। আমি যেহেতু কোম্পানির লোক, কোম্পানির কাজ দেখার জন্য রয়েছি, আমি ইউনিয়নের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড না। আমি এত ভেতরে যাওয়ার চেষ্টাও করি না। বেশ কিছুদিন ধরে এই ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করছিল, খবর আসছিল আমাদের কাছে, পুলিশ জানতো কিছুটা। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে 12:30টার সময় আমাদের একটা মন্দির ভেঙে দিয়ে চলে গেল। এখানে ওই কুখ্যাত এক ডাকাত আছে স্টেশনে, আর একজন নতুন ডাকাত তৈরি হয়েছে, নিজের বউয়ের চাকরি নিয়েছে আমাদের পার্টির হাতে পায়ে ধরে, সরকারের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরে বড় বিজেপি হয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না। এরপরে সবাই বিজেপির যারা এখানে আছে সব শুনুন, সাবধান হয়ে যান। ধৈর্যের একটা সীমা আছে। গণতন্ত্র মানে রাজনীতি করার জায়গা আছে, কিন্তু অফিস ভাঙা দূর থেকে কেন, সামনে থাকলে ছুরি মারো, সামনে এসে হিম্মত থাকলে। বিজেপির চ্যালেঞ্জ করছি, কোনো জায়গাতে কারোর ক্ষমতা থাকলে সামনে এসে ছুরি মেরে দিন না। মারছেন তো সব জায়গায়। ক্ষমতা থাকলে শিলিগুড়িতে কাউকে আমাদের একটা নেতার গায়ে ছুরি মেরে দেখুন, একটা ঢিল মেরে দেখুন। নেতা তো করার কথা, কর্মীর গায়ে হাত তুলে দেওয়া, একটা গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। দূর থেকে ঢিল মেরে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা। 24 ঘন্টার মধ্যে অ্যারেস্ট করতে হবে, বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে অ্যারেস্ট করতে হবে। আমরা পুলিশকে এফআইআর করছি। বাংলাতে এই জিনিস চলবে না। কোথার থেকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে, দিল্লি থেকে সব গুন্ডা নিয়ে এসছে। এই যে ঢুকছে বিজেপির নেতাগুলো সব এই করার জন্য। কলকাতায় দেখেছেন দাঙ্গা করার চেষ্টা হয়েছে, এখন শিলিগুড়ি উত্তর বাংলা এই জিনিস করার চেষ্টা করছে। ছেড়ে কথা বলবো না কাউকে, কেউ হাতে চুরি পরে বসে নেই আমরা। মন্দিরে হাত, এটা আমাদের মন্দির, এটা আমাদের মসজিদ, এটা গির্জা, এটা সব কিছু আমাদের। পার্টি অফিসে হাত দিচ্ছে, দেখছি আমরা কোথায় কে আছে, খুঁজে বের করবো মাটির তলা থেকে। যদি মনে করে যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায় কথা বলবো। এবার चाय बागान के मुआयने पर गए सांसद राजू बस्टा को दिखाया गया काला झंडा। नक्सलबाड़ी ब्लॉक के बेलगाटी चाय बागान के पोस्ट ऑफिस के पास तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ चाय बागान के श्रमिकों ने मिलकर अभियान पर आए सांसद राजू बस्टा को काला झंडा दिखाया। तृणमूल कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कोरोना महामारी के दौरान सांसद उन लोगों का हालचाल पूछने नहीं आए तो इस वक्त राजनीति करने क्यों पहुंचे हैं। जब वह लोग महामारी से लड़ रहे थे तब सांसद एक बार भी उन लोगों के पास खड़े नहीं हुए। अभी जब सब कुछ शांत थे तब वे पहुंचे हैं। सामने 2021 का विधानसभा चुनाव है तो सांसद राजू बिस्टा राजनीति और चुनाव का प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। इसी से नाराज होकर आज तृणमूल कार्यकर्ता और चाय बागान के श्रमिकों ने एक साथ मिलकर सांसद राजू बिस्टा को काले झंडे दिखाए। देखिए, आज 16 तारीख हो गया। आज इस महीना में जो राजू बिस्टे आने के बात हुआ, जो सुने हम लोग, इसलिए हम लोग एकत्रित होकर यहाँ पर उसका ये विरोध कर रहे हैं कि बीते दिन में जो कोविड-19 के समय में जो महामारी हुआ, हम लोग अपना कैंपिंग किया, गांव क्षेत्रों को हम लोग बचाए। उस समय ने गांव के बस्ती के जो भी हमारे श्रमिक थे, जो भी हमारा भाई बहन दीदी माँ जो भी थे हमारे, उन सभी को हम लोग किस तरह से गाइड किए, उनके घर में कैसे राशन पहुँचाए, कलेक्शन करके हो या कहीं का भी महत्व से हम लोग उसको दिए। लेकिन उस समय में राजू बिस्ट नहीं है, एक हम लोग का एक सवाल है। और दूसरी बात है, जब हमारे क्षेत्र में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो क्षेत्र से जो उसने एक सीट पाया, MP का सीट पाया, उस समय से लेके आज तक उसने आया नहीं। और उसने एक झूठी भी तसल्ली दी आदमी को कि हम गोरखालैंड देंगे। गोरखालैंड हो गया एक दूसरी मुद्दा।
लेकिन ये जो तराई में जो हम लोग पड़े हैं, जो आदिवासी बिहार जो कास्ट के लोग हैं, फिर ये तो जात पात भी कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। देखिए क्या है, मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता। 8-10 थे, कुछ झंडा लेकर के खड़े थे, लेकिन भाजपा के उससे ज़्यादा झंडा लेके वहाँ खड़े हो गए कार्यकर्ता। वास्तव में है क्या, वास्तव में आज जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की लहर चल रही है, इससे टीएमसी पूरी तरह जो है बौखलाई हुई है, क्योंकि उनका जनाधार खिसक रहा है और ये स्पष्ट है जनता का मूड, और जनता ने मन बना लिया है कि 2021 में मोदी जी की और भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनानी है। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ गांव-गांव में, आप तो 8-10 लड़कों के काले झंडे की बात करो, इतना समर्थन है, इतना लोग मोदी प्रेमी हैं। और जिस प्रधानमंत्री ने पिछले 6 साल में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए इतना कुछ किया है, तो मोदी जी का प्यार जो है और उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम जो है बहुत अपार है। और हमें भी इतनी जो इज्जत मिलती है, खदा मिलता है, माला मिलता है, टीका मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी की देन है। और हमें गर्व है कि आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और 2021 में ममता दीदी का जाना तय है, क्योंकि ये आतंकी सरकार है, ये चोर सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये कार्यकर्ताओं की हत्या कराती है, ये पॉलिटिकल नेताओं की हत्या कराती है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देती है। आज बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप के लोग पश्चिम बंगाल में पकड़े जाते हैं, अलकायदा के लोग पश्चिम बंगाल में पकड़े जा रहे हैं, और आईएसआई के मॉड्यूल यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, और टीएमसी के नेताओं में बम बनाया जा रहे हैं, घरों में बम बनते, बम फूट भी जाते हैं, लोग मर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। आपका मिस गवर्नेंस के कारण जो है पश्चिम बंगाल का कर्जा बढ़ रहा है, और नेता अमीर हो रहे हैं, जनता गरीब हो रहा है। अब जनता जाग चुकी है, 2021 में भाजपा की सरकार बन रही है, इसीलिए टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं, और इनके जितने भी नेता और नेतृत्व है सब चोर है। ये पूरी जनता, आप किसी से भी पूछ लीजिए, 10 जनता को पूछ लीजिए, 10 में से 10 आपको कहेंगे कि टीएमसी के नेता चोर है। आज विवेकानंद भवन में चाय निर्देशालय कार्यालय में श्रम एवं कानून राज्य मंत्री मलय घटक की उपस्थिति में चाय सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेषकर माल बाजार और बिन्नागुड़ी चाय बागान श्रमिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। चाय सुंदरी परियोजना के तहत चाय श्रमिकों के स्थायी निवास सहित बंद चाय बागानों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा विभिन्न योजना के तहत विभिन्न जगहों में शिविर लगाकर चाय श्रमिकों तक पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। इस विषय पर राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने जानकारी दी है। डायरेक्टर मीटिंग ছিল মলয় ঘটক চেয়ারম্যান মিনিস্টার লেবার অ্যান্ড ল উনি প্রিজাইড করলেন। অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো, বিশেষ করে কিছু ট্রেনিং সেন্টারে কিছু ট্রেনিং দেওয়া হবে চা বাগানের ওয়ার্কারদের, সেটা বিন্নাগুড়ি আর মালে হবে। আর চা সুন্দরী যেটা প্রোগ্রাম ডিক্লেয়ার হয়েছে, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলো নিয়ে ব্যাপক করে আমরা ক্যাম্পেনিংয়েও যাব। আর বন্ধ সিট চা বাগানগুলো যেগুলো আছে সেখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি যে বেনিফিটগুলো, সেই বেনিফিটগুলো নিয়ে সুন্দর করে ক্যাম্প তৈরি করে, এবং সেই ক্যাম্পের মধ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে তারা যে বেনিফিটগুলো পাচ্ছে, রাজ্য সরকার বেনিফিট, সেগুলো সমস্ত টি লেবারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে সংগঠিতভাবে। विभिन्न आरोपों को लेकर एटीएम कर्मचारियों ने आज निकाली सिलीगुड़ी में रैली। वेतन संबंधित व कर्मियों की छाटनी समेत विभिन्न आरोपों को लेकर बैंक के एटीएम कर्मचारियों ने आज अपनी आवाज बुलंद की है। बैंक की ओर से राज्य सरकार अनुमोदित उक्त बैंक के एटीएम कर्मचारियों के रुपए पैसे काटे जा रहे हैं। इसी के कारण आज वे लोग विरोध रैली निकाल रहे हैं। यह रैली सिलीगुड़ी के बाघाजतीन पार्क के सामने से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। कर्मचारियों ने कहा कि बैंक प्रबंधन को इसकी जानकारी देने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। কর্তৃপক্ষকে অনেকবার জানিয়েছি এবং চিঠিও করেছি, তবে কর্তৃপক্ষ কোনো কথা শুনছে না। আমাদের দাবি না মানা হলে আমরা এইভাবে আন্দোলন করেই চলবো। আমাদের 7000 কর্মী রয়েছে আমাদের শিলিগুড়ি টোটাল নর্থ বেঙ্গলে। আমরা এখানে প্রায় 40-50 জন লোক চলে এসেছে। এরকম দিকে দিকে সমস্ত জায়গায় চলছে আমাদের আন্দোलन। इस्लामपुर में एक रोगी की मृत्यु को केंद्र कर उसके परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम के सामने जमकर किया विरोध प्रदर्शन।
स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। इस्लामपुर के 3 पोल स्थित एक नर्सिंग होम में पिछले शनिवार को एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया था। इस व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में स्टोन था और उसका ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। आरोपी के ऑपरेशन के बाद ही उस व्यक्ति के घाव से खून बह रहा था। यहां तक कि उसको 5 बोतल खून भी चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रही थी। इस्लामपुर के नर्सिंग होम के द्वारा सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर दिया गया और शुक्रवार सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से मृतक अब्दुल जब्बार नामक इस व्यक्ति के परिवार वालों का गुस्सा भड़क उठा। परिवार का आरोप है कि चिकित्सा में लापरवाही बरतने के कारण ही उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है। इसी को लेकर आज परिवार के सदस्यों के साथ स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद स्थिति काफी भयावह बन गई और संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को उतारना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए स्थिति को संभाला। रोगी के परिवार वालों और अस्पताल प्रबंधन के बीच हालांकि बाद में बैठक भी हुई। এখানে সকাল থেকে গন্ডগোল চলছে, একটা ডেড বডি মারা গেছে। হয়তো আমি এখানে পড়োশিকার শুনেছি, এখন আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোলাম ভিতর থেকে প্রচুর শিলাবৃষ্টি চলছে। তো ব্যাপারটা ওরা পুলিশই আসলো, পুলিশের কর্তব্য একটাই যে এখানে মুভমেন্টটা দেখতে হবে। আসে হুট করে লাঠিটা একটা দুটা বাচ্চা ওদিকে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে, চোখের সামনে। তো এখানে পরিবেশটাকে সুস্থ করতে হবে। এখন পুলিশকে দেখার বিষয়টাই এভাবে হঠাৎ করে অ্যাকশন নিয়ে তো লাভ নাই। এটাই বলা হচ্ছে। यहाँ से ले जाना तो ठीक तक वो डेट कर गया है। हम लोग को बता रहे कि वो ठीक है। आज हम लोग को बोला कि वो डेट कर गया है। इस्लामपुर में डेट किया था सेंटर जो मिस्टर करके बढ़ाया गया। हमको कुछ भी नहीं बताया। वो बस 2 आदमी ये गाड़ी क्या 2 आदमी को बस पेशेंट के साथ किया। हम लोग कोई भी नहीं, घर का गार्जियन कोई भी नहीं गया। हम लोग को कुछ भी शासन नहीं बता रहा। आज वो लोग बताया कि आज पेशेंट डेट कर गया है। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে রোগী আমার মারা গেছে 4 দিন পর। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন আমরা রোগীটা ওখান থেকে নিয়ে আসলাম এখানে রাখলাম, ভিতরে গেছি, কথাবার্তা চালু হচ্ছে। আমাকে বলছে আপনি বাড়ি যান, আমরা ওখানে আর মানে এরকম করে আমার লোকজন যে যাত্রা ছিল সবাই আমাকে সন্দেহ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি যখন গাড়িতে বসি দিয়ে পাথর এসে আমার পিঠে লেগেছে, ডেড বডিকেও লেগেছে, গাড়িতে পাথর ভর্তি আছে। बेरोजगारों को नौकरी देने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर आज ऑल इंडिया डीवाईएफआई की तरफ से जिला शासक कार्यालय के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया डीवाईएफआई के सदस्य आज समाजपाड़ा से विशाल रैली करते हुए जिला शासक कार्यालय पहुंचे। यहां पर अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर पहले उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए, युवा श्री योजना के तहत भत्ता प्रदान करने, युवाओं को नौकरी दिए जाए, प्रवासी श्रमिकों को 100 दिन के तहत काम प्रदान किए जाए और जब तक काम नहीं मिलता तब तक उनको 7,500 रुपए मासिक भत्ता के रूप में प्रदान किए जाए। इस रैली का नेतृत्व ऑल इंडिया डीवाईएफआई सचिव सूरज लोध, सभापति काबुल हुसैन, सुजय पाल सहित अन्य ने किया था। आज युवा नेताओं ने जिला शासक के सामने मिलकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। जिला शासक ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আজকে গোটা রাজ্যব্যাপী জেলায় জেলা বিক্ষোভ কর্মসূচি হচ্ছে। বিশেষ করে সরকারি অফিসগুলোতে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে, নতুন করে কোনো নিয়োগ হচ্ছে না। দীর্ঘদিন থেকে আপার প্রাইমারিতে এসএসসি পরীক্ষা এবং টেট পরীক্ষা হওয়া সত্ত্বেও কোনো মানে শিক্ষক নিয়োগের কোনো কর্মসূচি মানে কোনো শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ অথবা 7,500 টাকা মাসিক ভাতা দেওয়া হোক। অপরদিকে আপনারা জানেন গোটা দেশ জুড়ে উত্তরপ্রদেশে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও ব্যাপক হারে মহিলাদের উপর, শিশু থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের মহিলাদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চলছে, ধর্ষণ চলছে, ক্রমাগত বাড়ছে। কোনো সরকারি নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে, নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। আমরা চাইছি অবিলম্বে নারীর নিরাপত্তা রক্ষিত হোক এবং এ রাজ্যেও মদকে সম্পূর্ণভাবে বিহার, মিজোরাম এই সমস্ত রাজ্যে যেমন মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আমাদের রাজ্যে ওই মদকে নিষিদ্ধ করা হোক। আপনার নাম আর পরিচয়? দাবিগুলো নিয়েই আজকে আমরা জলপাইগুড়ি জেলা শাসক দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছি। सिविक वॉलंटियर की निगरानी के बावजूद अहमदाबाद में काली मंदिर में हो गई है चोरी, लाखों के गहने उड़ा ले गए चोर। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। उत्तर दिनाजपुर जिले के अहमदाबाद थाना से करीब 50 मीटर की दूरी पर विद्रोही क्लब का काली मंदिर है। गुरुवार रात को इस मंदिर से चोरी हो गई है और चोर महाकाली के सोने के अलंकार सहित दान पेटी से लाखों रुपए चोरी कर फरार हो गए हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इस मंदिर परिसर में सिविक वॉलंटियर्स रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद यहाँ से चोरी हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
सीसीटीवी कैमरे में पता चला है कि 9:30 के करीब चोर मंदिर में घुसे और उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। মন্দিরে নিত্য পূজার পরে প্রতিদিন রাত্রি 8টা নাগাদ আমাদের মন্দির বন্ধ হয়, একজন কর্মচারী এসে মন্দির বন্ধ করে দিয়ে যায়। তারপর 10টা অবধি এখানে লোকজন সব ক্লাবের মেম্বাররা থাকে। তারপরে সিভিক 10টার সময় চলে আসে। আজকে সকালবেলা ফোন পেলাম 6টার সময় যে মন্দিরে চুরি হয়ে গেছে, গেট খোলা আছে। যে কর্মচারী সকালবেলা মন্দির ধুতে আসে সে জানালো যে গেট খোলা রয়েছে। তো আমরা তাড়াতাড়ি করে এসে দেখি যে মন্দিরের গেট খোলা, সিসিটিভি কাটা, এবং তারপরে গিয়ে দেখলাম মায়ের সমস্ত গয়না যেগুলো ছিল, মালা ছিল এবং বিছা ছিল, একটা পায়ের তোড়া ছিল, টিপ ছিল, এসব সমস্ত জিনিস তারা নিয়ে চলে যায় সোনার। এবং তারপরে আমরা যা খবর পেলাম এখানে সিভিকও ছিল রাত্রি 10টা থেকে ভোর 4টা অবধি। সে থাকা সত্ত্বেও কী করে চুরি হলো বুঝতে পারছি না। একদম প্রশাসনের নাকের ডগায় 50 মিটারও হয়তো হবে না, থানা সেন্টি গার্ড দিতে দিতে মন্দির দেখা যায়। সেই অবস্থায় কী করে হলো ওটাতে বোঝাই যাচ্ছে অসৎ উদ্দেশ্য ছিল এর মধ্যে, এবং কী জন্য হচ্ছে বুঝতে পারছি না। বড়বাবু এসেছিলেন, দেখে গেলেন। আনুমানিক আমরা আর করছি 1.5 লাখ টাকা। 1.5 লাখ টাকা এখন অবধি বোঝা যাচ্ছে, এখনও ভেতরে না ঢুকলে ঠিকঠাক বুঝতে পারবো না। আমাদের পুরোহিতকে ডাকলাম, তিনি এলে বুঝতে পারবো ঠিক एग्जैक्ट কত টাকা। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस, और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने। अब तक 64.5 लाख लोग हुए ठीक। एक्टिव केसेस में आई कमी। देश में कोरोना वायरस महामारी के रोजाना मामलों में अब कमी आ रही है। देश में फिलहाल 64.5 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। एक्टिव मामले घटकर करीब 8 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले काफी दिनों से कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दिखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 63,371 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में कोरोना से 895 लोगों की मौतें भी हुई है। कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो देश में अब तक 73,70,469 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 64,53,780 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा अब घटकर 8,04,528 पर पहुंच चुका है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,12,161 पहुंच चुका है। दुनिया में कोविड-19 से अब तक 11.02 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। 2.93 करोड़ से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.87 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,91,49,291 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.96 लाख के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। फ्रांस में बीते 24 घंटे में 30,621 संक्रमित मिले। यह महामारी शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। गृह मंत्री गेरोल्ड ड्रमनियन ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार को देश के सभी प्रमुख शहरों में कर्फ्यू कड़ाई से लागू कराया जाएगा। इसके लिए 12,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। देश में अब तक 8,09,684 संक्रमित मिल चुके हैं और 33,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। बीते बुधवार को राजधानी पेरिस समेत 8 राज्यों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया था। आखिर देश में कब रुकेगी हैवानियत? यूपी में फिर से हुआ नाबालिग से रेप। बाराबांकी में धान काटने गई 15 साल की लड़की के साथ 5 लोगों ने किया गैंगरेप। नाक और मुंह दबाए रखने से दम घुटने से हुई लड़की की मौत। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में धान काटने गई एक 15 साल की लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। शराब पीने के बाद आरोपियों ने लड़की को खेत में दबोच लिया और गैंगरेप किया। पीड़ित चीखने ना पाए, इसके लिए आरोपियों ने उसका मुंह और नाक दबाए रखा। इसके लिए लड़की का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ा दी है। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार शाम पीड़ित के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। सतरीक थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाली पीड़ित बुधवार शाम धान की कटाई करने के लिए खेत गई थी। काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। रात में लड़की का शव खेत में अर्धनग्न अवस्था में मिला। उसके हाथ बंधे हुए थे। मौके की परिस्थितियां बता रही थी कि लड़की के साथ पहले दुष्कर्म फिर हत्या की गई। वारदात करने वालों में 1 या 2 नहीं बल्कि इससे ज्यादा थे। मौके पर शराब की 3 बोतलें भी मिली है। कोरोना मरीज की जान बचाने में असफल रही रेमडेसिविर दवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में खुलासा। अमेरिकी कंपनी गिलेड की रेमडेसिविर कोरोना मरीज की जान बचाने में सक्षम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किए गए क्लिनिकल परीक्षण में पाया कि रेमडेसिविर की सहायता से कोविड-19 मरीज के अस्पताल में रहने की अवधि और जीने की संभावना बहुत कम और ना के बराबर है। शुरुआत में कोरोना के इलाज के लिए इसी एंटीवायरल दवा का इस्तेमाल किया गया था और हाल ही में कोरोना वायरस से रिकवर हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज के लिए भी इसी दवा का इस्तेमाल किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 संभावित दवा रेजिमेंट पर परीक्षण किया था। इसमें रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एंटी-HIV ड्रग्स कॉम्बिनेशन, रिटोनाविर और इंटरफेरन शामिल है। इस परीक्षण में 30 देशों के 11,226 मरीजों को भी सम्मिलित किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि कोरोना का इलाज कराने अस्पताल में लंबी अवधि के लिए भर्ती मरीजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। WHO के प्रमुख सौभ्या स्वामीनाथन ने कहा कि यह शोध के दौरान हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और लोपेनाविर, रेटोनाविर को जून में रोक दिया गया था, जब पता चला कि यह दवाई असरदार नहीं है, लेकिन
दूसरे परीक्षण में अन्य 500 अस्पतालों और 30 देशों में लगातार चलते रहे। 1 मई को अमेरिका के फूड और ड्रग्स प्रशासन ने रेमडेसिविर को अमेरिकी इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसे कई देशों के आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 117 वर्ष पुराने ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में इस वर्ष 40 लोग एक साथ दे सकेंगे अंजलि। महाप्रसाद का वितरण नहीं, सिंदूर खेल पर भी प्रतिबंध। बांस के बैरिकेड से मंदिर को घेरा गया। 117 वर्ष पुराने ऐतिहासिक अलीपुरद्वार दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा के अवसर पर इस वर्ष दर्शनार्थियों का हुजूम देखने को नहीं मिलेगा। पूरे मंदिर परिसर को बांस के बैरिकेड से घेर दिया गया है। अलीपुरद्वार दुर्गाबाड़ी की दुर्गा पूजा जिले में अति प्राचीन व ऐतिहासिक दुर्गा पूजा में गिना जाता है। हर वर्ष दुर्गाबाड़ी में हजारों की संख्या में यह भीड़ जुटती है। हर वर्ष यहां आए दर्शनार्थियों को खिचड़ी का महाप्रसाद प्रदान किया जाता है, लेकिन कोरोना काल में इस वर्ष ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। इस वर्ष यहां अष्टमी के दिन अंजलि देने की व्यवस्था है, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विधियों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। बताया जाता है कि हर वर्ष अष्टमी के दिन यहां हजारों की संख्या में लोग मां दुर्गा को अंजलि देते हैं, लेकिन इस वर्ष एक साथ 40 लोगों की ही अंजलि देने की अनुमति दी गई है। दुर्गा पूजा पर आयोजित होने वाले सिंदूर खेल उत्सव को भी इस बार टाल दिया गया है। इस वर्ष भक्तजन सीधे तौर पर मां दुर्गा को सिंदूर नहीं लगा सकेंगे। প্রথম প্রোটেকশন হচ্ছে আমরা ভোগটা বন্ধ করেছি, যেটা নিয়ে বিশাল হ্রাস হতো একটা আর কি, যে আমাদের প্রায় প্রচুর ভোগ করে, সন্দেশ ভোগ এবং খিচুড়ি ভোগ, এই দুটোই আমরা বন্ধ রেখেছি। এবং অঞ্জলিটাও ওইভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বলুন বা সামাজিক দূরত্ব বলুন, দূরত্ব বেঁধেই আমরা অঞ্জলিটা করছি। আর এখানে আমরা ব্যারিকেড করে দিয়েছি যাতে একজন আরেকজন ওপর দিকে তাদের ডিস্টেন্সটা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা প্রায় 3 ফুটের উপরে থাকে এবং ওইভাবে ব্যারিকেড করে, ব্যারিকেড দিয়ে একই ব্যারিকেড দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে এবং ইনসাইড 3টে ব্যারিকেড, আউটসাইডও 3টে আলাদা আলাদা। আমরা নিজেরাই খুব দুঃখিত এবং ভক্তরাও দুঃখিত, কারণ এটা একটা আবেগের জায়গা, কিন্তু আমরা একমাত্র করোনা পরিস্থিতির জন্য এটা করতে বাধ্য হয়েছি। কারণ হচ্ছে যে আগে জীবন পরে আচার। আমরা এমনি কিন্তু পুজোর যে আনুষঙ্গিক সম্পূর্ণভাবে হবে, তাতে কোনো রকম ত্রুটি নেই। পুজোর যে সিস্টেম বা পুজো যেভাবে হয় তাতে কোনো রকম ভ্রান্তি নেই। শুধুমাত্র করোনার জন্য আমরা ভোগটা বন্ধ রেখেছি এবং লোককে সোশ্যাল ডিস্টেন্স রেখে দূরত্ব, মানে একটু দূরত্ব থেকেই আমার মাকে দেখতে হবে। ऑटो व मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में 2 महिलाएं समेत 4 की मौत, 1 घायल। मालदा जिले के सामसी गाजोल 81 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशिपुर व भगवानपुर इलाके में गुरुवार देर रात ऑटो व मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अस्पताल सूत्र के अनुसार मृतक व्यक्तियों में 2 महिला तस्लीमा बीवी व शुक्री बीवी व एक किशोर शेख असलम तथा एक युवक मोमिनुल हक शामिल है। इनमें से 3 लोगों के घर हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर गागंदिया गांव में है, जबकि युवक का घर समसी के भगवानपुर गांव में है। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति का नाम रिजू मंडल है, वहां भी भगवानपुर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस सूत्र के अनुसार हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के गागंदिया गांव में कुछ लोग ऑटो पर सवार होकर पुडुआ की ओर जा रहे थे। दूसरी ओर एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार होकर श्रीपुर से सामसी की ओर आ रहे थे। 81 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीपुर भगवानपुर से सटे इलाके में ऑटो व मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल दूर जा गिरा। मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार असलम शेख गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार 2 यात्री तस्लीमा बीवी व शुक्री बीवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय किशोर मालदा अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल मोटरसाइकिल सवार असलम शेख की अवस्था संकटजनक बताई जा रही है। उसे चिकित्सा के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर किया गया है। আমি একটু আগে খবর পেয়েছিলাম যে শামসি রুরাল হসপিটালের ডাক্তারবাবু আমাকে ফোন করেছিলেন যে এখানে 3টা ডেড বডি আসছে। এরা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শ্রীপুর পেট্রোল পাম্পের সামনে। ওখান থেকে এরা ইনজোর্ডকে সাধারণ লোকজন রেস্কিউ করে হসপিটালে নিয়ে আসে। হসপিটালে আসার পরে এখানে 3 জন মারা যায় এবং ওসি কুকুরিয়া নিজে এসেছিলেন। উনি বললেন যে একজন ওখানেই
অটোর মধ্যে ডেড বডি পাওয়া গেছে। টোটাল 4 জন মারা গেছে, কিন্তু তাদের এখনও আমরা আমি আহত শুনেছি আরও একজন আহত হয়েছেন, টোটাল 5 জন ছিল, তার মধ্যে 4 জন মারা গেছেন, কিন্তু এখনও তাদের পুরো ফায়ার আউটস পাইনি। ফায়ার আউটস পেলে আমি আপনাকে আমরা গাড়ি নিয়ে আমার নিজের মানে অটো রিক্সা নিয়ে যাচ্ছিল, আর ওদিক থেকে বাইক আসছিল, ফাঁকা ছিল রাস্তা, ওই যে আসছে, আর ওদিক থেকে বাইক আসছিল, বাইকটা ওদিক থেকে দূর থেকে আসছে কি না তো লাগছে, তো একদম লাগছে হেলিকপ্টার মনে হয় আসছে। আচ্ছা, ফাঁকা ওদিকে গোটে রাস্তা কিন্তু ফাঁকা আছে, আমরা নিজের সাইডে ঠিক আছি, দূর থেকে মনে লাগছে কিছু ঠুকবে মনে হয়, আমার মনটা যেন হয়ে গেল। আচ্ছা, আসছে একদম এরকম বাইক করে একদম মারি সেটা একদম বনবন করতে ঘুরছে। আমরা আসলাম কজন ব্রড ডেট হয়েছে সেটা কি যেটা হয়েছে সেটা আমরা জানার জন্য আসলাম। সেটা জানতে পারলাম এখানে যে অলরেডি 3টেকে এখানে 2টো ব্রড ডেট হয়েছিল, একটাকে রেফার করেছিল, একটা বাচ্চা ছেলেকে রেফার করেছিল, সেটা থেকে জাস্ট গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স স্কুলে রওনা দেবে সেই সময় মারা গেছে। মানে টোটাল এখানে 3টে মারা গেছে। আমরা স্পটে একটাকে পেয়েছি, একটা মারা গেছে না, সেগুলো ব্রড ডেট হয়েছে, এখানে বেঁচে ছিল, এখানে নিয়ে আসা বেঁচে ছিল, তারপরে যখন ওখান থেকে পাঠানো হয় শ্বাস নিচ্ছিল এরকম অবস্থা। আমি ওসি পুকুরিয়া পুলিশ স্টেশন। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।